उस भारत से आता हूँ, मैं उस भारत से आता हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है। नहीं गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोकना सपनों के तूफानों को, रोकना कदमों की उड़ानों को, रोकना हाथों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, चिरादे चिरादे। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू भाई है मेरा। मैं चेत की आदत ऐसा हूँ, मेरे दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे। तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म। Good morning, everyone. I wish each one of you and your families the very happy 76th Republic Day. On this auspicious occasion, I feel myself very proud and privileged, and especially proud and privileged to find that my own son, Master Rishabh Duri, who has been selected for Indian Army as a commissioned officer, is designated today as the chief guest of this event. And as everybody knows that every parents feel very proud to find their wards when they are being invited and being given a great honor as the chief guest to any event, whether in their society or institution. And I wish that each child sitting in front of me should really achieve and accomplish their task in a way that they get the grand success, and on the fine day they also try to get great and greater honors in their life. प्यारे बच्चों, हमारे स्पेशल गेस्ट ने, ऋषभ ने बहुत अच्छी बात बताई है मिस्टेक्स के बारे में, और एक फेमस कोटेशन है जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आप लोगों ने सुनी भी होगी, और वो पूरे जीवन में लागू होती है, केवल स्टूडेंट लाइफ में नहीं, हर किसी की लाइफ में लागू होती है. एंड दैट कोटेशन इज स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आर स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस. आई रिपीट, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आर स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस. यानी आपके जीवन में अगर कोई रोड़ा आता है तो ये मान लीजिए कि वो आपकी सफलता के स्टेपिंग स्टोन्स हैं, वो चरण हैं. नहीं आता है तो वो सफलता कहीं नहीं जा सकती. इसलिए नेवर गेट अवे विथ एनी काइंड ऑफ फियर व्हेन यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स and some blocks in your life. And rightly said that personality matters the most. I always keep saying the same. Howsoever, let us all learn that once we really are very dutiful, then we automatically get our rights. If we really are not very dutiful, we don't actually get our rights freely. So to get our rights with freedom, with courage, and with the sense of belongingness, we must ensure that we are performing our duties at our own in the self-motivated style, without being pointed and instructed by anybody,
our rights cannot be snatched by anyone. No one can dare to do it. So dear children, whatever your duties are there, on this particular 76th Republic Day, you must take a pledge that whatever my duties are there towards every person, thing or place associated with me will be done religiously and by heart from my side. And if that's being done, I tell you that the six fundamental rights can be enlarged beyond the constitution to make your own constitution. So without taking too much of time, I once again pray Almighty to bless all of us to be really so wise and matured to adopt the different expectations of the Constitution of India in terms of our own development and progress, and bless all of us to be dutiful to it, being the nation on the top of the list, and to live a very real republic life. Once again, Happy Republic Day to each one of you and your family members. Thank you. God bless you. So, good morning and happy 76th Republic Day. Honorable Chairman sir, Honorable Principal sir, my father as well, Karniram sir and SP Meena sir. First of all, thank you so much कि आपने इतना ऑनर दिया. मुझे ये मौका मिला कि आज मैंने ध्वजारोहण किया यहाँ पे. So I am blessed and all your well wishes were with me. इसीलिए आज ये सफलता मेरे को मिली है. जैसे क्लास 11th बायोलॉजी के बच्चे धर्मेंद्र ने एक चीज़ बोली कि संविधान हमें अधिकार देता है. अधिकारों की बात तो सब करते हैं, पर कर्तव्यों की बात कम ही लोग करते हैं. वो भी संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं इस देश के प्रति, तो हमें उनको भी देखना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि भारत कभी सिर नीचे ना झुकाए. हम किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, फौज से हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज से हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं, एथलीट्स हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं. हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही बनता है कि देश पहले, फैमिली बाद में है. जैसे SP मीणा सर ने भी एक बात बोली कि मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी आपके ही बीच में बैठा करता था कोई टाइम पे. मेरे भी कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है 12th में, 70% आए थे. बट द थिंग इज, आप कभी हार मत मानो. एक्सेप्ट योर फेलियर्स बिकॉज फेलियर्स टीच यू द जर्नी विच टेक्स यू टुवर्ड्स द सक्सेस. कीप योर फेलियर्स एज योर स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स सक्सेस. अगर आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चेंजेस नहीं आएंगे जो आने चाहिए. उन फेलियर से आप एक बोल्ड एटीट्यूड को अपने अंदर जन्म देते हैं, एक पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, और आपके अंदर सबसे बड़ी बात एक एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ, मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, मुझे भी उनको सही करना है. कोई भी इंसान एकदम परिपक्व नहीं होता है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है. और मार्क्स, अगर आपके मार्क्स परसेंटेज अच्छे हैं, वेल एंड गुड, बट दे डोंट मेक एज सच डिफरेंस इन योर लाइफ. सबसे बड़ी बात होती है पर्सनैलिटी. आपको हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए. को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही पर्सनैलिटी को शेप करते हैं. ज्ञान तो किताबों से अर्जित कर लेंगे, एक्सपीरियंस से अर्जित कर लेंगे, पर पर्सनैलिटी बाकी एक्टिविटीज़ से ही आप अपनी अपलिफ्ट कर सकते हैं. तो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए, पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए. अपनी जी जान झोंक के उनके लिए प्रैक्टिस कीजिए, उनमें परफॉर्मेंस दीजिए. फर्स्ट आना, सेकंड आना या लास्ट आना मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि आपने परफॉर्म किया, पार्टिसिपेट किया और वहाँ से कुछ सीखा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. जिनका भी बोर्ड एग्जाम है, स्कोर वेल एंड ऑल द बेस्ट. जय हिंद. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. 76 रिपब्लिक डे की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं. आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर ऋषभ डूडी, आर्मी में हाल ही में लेफ्टिनेंट पद पे चयन हुआ है, और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारा ही प्रिंसिपल सर का बेटा और हमारा भी बेटा आज इस पद पे है, तो हमें इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी. आप सामने बैठे बच्चे, आप ही का भाई है, छोटा बड़ा. आप सोचिए, आप भी मेहनत करोगे तो हो सकते हैं. आज के मेरे आदरणीय अंकल जी श्री कन्नीराम जी बेनीवाल एंड मिस्टर रोहताज डूडी प्रिंसिपल, और हमारे आदरणीय SP मीणा साहब, ये सारे आर्मी ऑफिसर मेरे साथ हैं.
तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि सभी ने देश की सेवा में पूरा अपना योगदान दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही में एक युवा मिस्टर ऋषभ डूडी ने भी अभी हाल ही में किया, तो बहुत ही अच्छी बात है। इनका भी पूरे जीवन की मैं कुशल मंगल कामना करता हूँ। और समय का अभाव है, हमें अभी निमका थाना पहुँचना है, समय कम है, फिर भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप भी मिस्टर ऋषभ डूडी की तरह मेहनत करें और किसी भी फील्ड में मेहनत करो, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कभी भी हार मत मानना, जिद रखना, जिद जो बच्चा करता है वो अवश्य सफलता प्राप्त करता है। चाहे टीचर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मैं हो, मैं तो हमेशा जिद रखता हूं कि मुझे किसी भी काम में हार माननी ही नहीं है, तो मैं अवश्य सफलता होती है। कोई भी काम करोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, और मेहनत के बाद में जो सफलता होती है वो एक आपको बड़ा प्राउड फील होगा। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।